This conference will now be recorded. Okay, everyone. So in Intune services, we have already discussed about the different method that we have, and by using these methods, we are able to enroll our on-premises devices. So, do we have any question related to the enrollment process? Hello, can you hear me? ये एक्चुअली पिछली क्लास में मैं था नहीं तो अभी मेरे को कोई क्वेश्चन नहीं है ठीक है, ठीक है. I'm going to start from the very basic, like as the enrollment का process हम already discuss कर चुके थे. So about device enrollment में we should know about the prerequisite जो कि ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था. किसी भी डिवाइस को एनरोल करने के लिए मेक श्योर कि you have already fulfilled the entire prerequisite. The prerequisite are you need to create a user, then create group, add your user to group, and then assign the license. You need to assign the license to the particular group, and after that use same user to enroll any device. Method आपका कोई भी हो सकता है, but user के पास to enroll any device. So we have already discussed about the method कि कितने तरीके के method है हमारे पास to enroll किसी भी डिवाइस को enroll करने के लिए, जिसमें से हमने सबसे पहले देखा था with the help of discovery URL. By using the discovery URL, we are able to enroll any device. Especially, it is applicable for Windows machine. Second, we discussed about company portal. और लास्ट हमने डिस्कस किया था पिछली क्लास में हमने बात की थी अबाउट द यूसेज ऑफ ऑटो पायलट, how we can manage the services, how we can enroll the device with the help of autopilot. एक और स्टेप बचा है अपने पास which is bulk enrollment. We should know about the method how we can perform the task of bulk enrollment. ये मेथड हमें देखना है अभी, और विल ऑल्सो डिस्कस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट बल्क एनरोलमेंट के बाद विल टॉक अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ compliance policy, and we'll discuss about the part of compliance policy plus conditional access policy. So this is the agenda जिसमें से हम अभी हम डिस्कस करने वाले हैं कंडीशनल एक्सेस एंड कंप्लायंस पॉलिसी, फिर बल्क इनरोलमेंट पे मूव करेंगे. Let me help you to understand about the actual meaning of compliance policy and the conditional access policy. ये दोनों पॉलिसी को आप सेपरेटली यूज कर सकते हैं अलग अलग, एंड वी हैव ऑप्शन टू यूज दिस पॉलिसी विद द सेम एट अ सेम टाइम. दोनों पॉलिसी को एक साथ भी कॉन्फ़िगर किया जा सकता है और हम इसको सेपरेटली भी मैनेज कर सकते हैं. कंडीशनल एक्सेस पॉलिसी के अंदर यू विल फाइंड लॉट्स ऑफ सर्विसेज. दो सर्विसेज कैन हेल्प यू टू मैनेज योर यूजर अकाउंट. आप अपने मेलिंग सर्विसेज को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, आप अपने यूजर को जो आपने इंट्यून के लिए तैयार किया है. यू कैन ऑल्सो प्रोटेक्ट योर इंट्यून इनरोलमेंट यूजर कि आप किस लोकेशन में इसको अलाउ करना चाहते हैं, किस डिवाइस के लिए अलाउ करना चाहते हैं. ट्रस्टेड आईपी एड्रेस एमएफए भी आप एडिशनल एक्सेस पॉलिसी से कॉन्फ़िगर कर पाएंगे.
Let me help you to understand more about the usage of conditional access. फिर हम बात करेंगे अपने the usage of compliance policy. Think about this is our portal in the sense I'm talking about and computing end user uh, uh, endpoint.microsoft.com. It means that Intune portal की बात कर रहे हैं. And you know that over Intune portal we will find the option of conditional access. The meaning of conditional access, with the help of this particular service, we are able to manage our resources as well as the users that you created. Think about we created multiple user. यहाँ पे हमने कुछ users create कर रखे हैं like as AWS के नाम से, GCP के नाम से या Telnet के नाम से. ये कुछ यूजर हमने पहले से तैयार कर रखे हैं अपने Microsoft Intune पोर्टल के ऊपर with the help of Active Directory. कंडीशनल एक्सेस पॉलिसी हमें इन सभी यूजर के लिए अप्लीकेबल बनानी है. सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट द एक्चुअल यूसेज. द कंडीशनल एक्सेस पॉलिसी कैन हेल्प अस टू मैनेज द प्लेटफॉर्म. किस प्लेटफॉर्म से आप अपने डिवाइस को लॉग इन करना चाहते हैं, किस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म को आप अपने इस यूजर के साथ इनरोल कराना चाहते हैं. ये सेग्रीगेशन आप इसमें बाइफर्गेशन कर सकते हैं कि आप AWS यूजर को सिर्फ और सिर्फ विंडोज के लिए डिजाइन करना है, GCP को सिर्फ और सिर्फ मैक के लिए डिजाइन करना है, या फिर टेलनेट को हम ऑथराइज कर रहे हैं कि वी आर एबल टू इनरोल ओनली विद आवर लिनक्स मशीन. अगर हम बात करें इंट्यून के केस में, अगर आप किसी क्लाइंट को हैंडल कर रहे हो या फिर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द जॉब इंटरव्यू इन केस ऑफ इंट्यून सर्विसेज, तो मेक श्योर कि बहुत सारे क्वेश्चन या बहुत सारी चीजें रहती हैं आपकी जो आप मीन्स बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं लाइसेंस से रिलेटेड, कंडीशनल एक्सेस से रिलेटेड और कंप्लायंस पॉलिसी से रिलेटेड आपके पूछे जा सकते हैं. सो लेट मी हेल्प यू टू अंडरस्टैंड अबाउट कि कॉन्सेप्ट क्या कहता है, किस तरीके से चीज़ों को मैनेज करेंगे. सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लाइसेंस के बारे में, बिकॉज यू नो दैट विदाउट लाइसेंस वी आर अनेबल टू परफॉर्म एनी टास्क. इंट्यून एक ऐसी सर्विस, नॉट ओनली द इंट्यून, किसी भी क्लाउड प्रोवाइडर की बात करें तो या तो आपके पास सब्सक्रिप्शन होना चाहिए या तो लाइसेंस होना चाहिए. Licenses are applicable for the application services, Office 365 application services, और सब्सक्रिप्शंस जो हैं वो AWS और Azure गूगल क्लाउड के लिए अप्लीकेबल होता है. लाइसेंस के अंदर जो फीचर्स मिलते हैं, लाइसेंस का जो प्राइस है वो फिक्स है, सब्सक्रिप्शन का प्राइस फिक्स नहीं होता. सब्सक्रिप्शन कैन वर्क एज पर द पे एज यू गो. आप जितना पेमेंट करेंगे उसके अकॉर्डिंग, जितना आप यूज करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको पेमेंट करना पड़ेगा. बट लाइसेंस की बात करें तो लाइसेंस यू नीड टू पे द अमाउंट ओनली वन टाइम, और उस लाइसेंस के अंदर क्या क्या फीचर है वो हमारा प्रोवाइडर डिसाइड करेगा. हम नहीं डिसाइड करेंगे कि इस लाइसेंस में हमें क्या मिलना चाहिए या हम क्या चीज मॉडिफाई करना चाहते हैं. लाइसेंस इज ऑल्सो कैटेगराइज इन टू डिफरेंट पार्ट. ध्यान से इसमें देखना है हमें. The license also categorized in two different part. One is package, one is license with package, and another is which is considered as a add-on license. ठीक है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है कि किस तरीके से हम इसको मैनेज करते हैं. पैकेज की बात करें तो वी हैव a number of example. E1 एक तरीके का पैकेज है, राइट. E3 एक तरीके का पैकेज है, E5 एक पैकेज है, राइट, एंड F3 इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ पैकेज. द मीनिंग ऑफ पैकेज यहाँ पे क्या हो रहा है, पैकेज का मतलब ये है कि माइक्रोसॉफ्ट डिसाइड करेगा कि आपको इस पर्टिकुलर लाइसेंस के अंदर क्या क्या सर्विसेज देनी है. एंड द पैकेज कैन नॉट कंटेन द फीचर ऑफ इंट्यून सर्विसेज. पैकेज के केस में आपको जो सर्विसेज मिलेंगे, क्या सर्विसेज हो सकती हैं, ये आपको क्लाउड एप्लीकेशन सर्विसेज प्रोवाइड करेगा. द मीनिंग ऑफ क्लाउड एप्लीकेशन सर्विसेज, जिसमें आप एक्सेल, एक्सेस, पावर पॉइंट, वन नोट या जो भी सर्विसेज माइक्रोसॉफ्ट से रिलेटेड रहती है वो आपको मिल जाएगी. इसमें आपको टीम्स मिलेगा, इसमें आपको यामर मिलेगा, इसमें आपको वन ड्राइव फॉर बिजनेस मिलेगा, राइट. ये सारी सर्विसेज मिला करके E3 लाइसेंस में या E1 लाइसेंस में आपको 35 लाइसेंस सर्विसेज मिलती हैं. F5 लाइसेंस में आपको 56 सर्विसेज मिलती है. यू नीड टू सेग्रीगेट द लाइसेंस फीचर. लेकिन इन दोनों में से कोई भी लाइसेंस आपको इंट्यून का ऑप्शन नहीं प्रोवाइड करता. अगर आपको सर्विसेज इस्तेमाल करनी है, लेट्स टेक एन एग्जांपल, अगर आपको SSPR यूज करना है, अगर आपको इंट्यून इस्तेमाल करना है रियल इन्वायरमेंट के केस में, एंड इफ यू वांट टू यूज द सर्विसेज रिलेटेड टू द माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर, इफ यू वांट टू यूज द सर्विसेज ऑफ माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर, आप इसमें आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट यूज करना चाहते हैं, आइडेंटिटी
एंड मैनेजमेंट. सो इन these सर्विसेज के लिए, इन सभी सर्विसेज के लिए यू ऑलवेज प्रोसीड विद एड ऑन लाइसेंस. ये जो लाइसेंस आप बात कर रहे हैं ये एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बता रहे हैं ना आप, ये SSPR और इंट्यून और MS डिफेंडर, ये एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट का लाइसेंस की बात कर रहे हैं ना आप? SSPR में केवल एडमिन का लाइसेंस जाता है, ये एडमिनिस्ट्रेशन के लिए लाइसेंस आप इसमें असाइन करते हो. इंट्यून के लिए आपको ग्रुप बना करके उस यूजर के ऊपर असाइन करना पड़ेगा. ओके. राइट. द SSPR लाइसेंस या आप P2 लाइसेंस की बात करते हो तो इसको किसी पर्टिकुलर यूजर या ग्रुप के लिए असाइन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है. जैसे ही आप ये लाइसेंस एक्टिवेट करते हैं या परचेज करते हैं, या आपका लाइसेंस अप्लीकेबल हो जाता है पूरे टेनेंट के ऊपर. राइट. लेकिन इंट्यून का जो लाइसेंस है वो आप एक्टिवेट करने के बाद आपको मैनुअली असाइन करना पड़ेगा एज पर द रिक्वायरमेंट कि आप किस यूजर के लिए ये लाइसेंस असाइन करना चाहते हैं. इज दैट क्लियर? So you should know about the difference between the मेरा तो एक types of क्वेश्चन है. licenses that we have. Yeah. मैं ये कह रहा हूँ जैसे लाइक मुझे इंट्यून यूज करना है, मुझे इंट्यून से एंड यूजर डिवाइसेस को मैनेज करना है, तो मुझे भी कोई टेनेंट को मैनेज करने के लिए मेरे पास भी कोई लाइसेंस होना चाहिए, तभी मैं यूजर को मैनेज कर पाऊंगा, राइट? Exactly. You mean to say that कि हम और इनमें से कोई लाइसेंस नहीं खरीदना चाहते हैं, डायरेक्टली हम ये इस लाइसेंस पे आ सकते हैं या नहीं, तो वो पॉसिबल नहीं है. ये मैंडेटरी है कि पहले आपको इसमें से एक कोई लाइसेंस लेना पड़ेगा ताकि आपको टेनेंट असाइन हो जाए, और उसके बाद आप एड ऑन लाइसेंस इस्तेमाल करके किसी डिवाइस को इनरोल करा पाओ. ओके. मीन पहले मुझे पैकेज के लाइसेंस लेने पड़ेंगे, जैसे E1 है, E2 है, E5 है, और तो हाँ, इसके इनमें से अंदर कोई भी लाइसेंस ले लो. इसके अंदर सर्विसेज होती हैं, लाइक ऑफिस है, माइक्रोसॉफ्ट टीम है, वन ड्राइव है, ये हाँ सब जी, हाँ सर्विसेज. जी. जब ये मैं बाई करूंगा तब मुझे P1 लाइसेंस मिलेगा इंट्यून मैनेज करने के लिए, राइट? राइट, राइट, राइट. ओके. तो वैसे P1 मतलब इस तरह के कितने लाइसेंस होते हैं इंट्यून के अंदर? P1 है और P2 भी होता है, वो कितने टाइप के इंट्यून लाइसेंस? नहीं, इंट्यून P1 में नहीं आता ना P2 में आता है. P1 तो बंद हो चुका है, पहले आता था. जी. अभी P1 जो है, जब से आपका इंट्रा एडमिन आया है ना, ईडी में जो चेंजेस हुए हैं, इंट्रा एडमिन पहले या एज डायरेक्टरी डायरेक्टरी था, अभी आपका ये इंट्रा एडमिन हो गया होगा. राइट. आपने देखा होगा. तो जब से ये इंट्रा एडमिन को इंट्रोड्यूस किया माइक्रोसॉफ्ट ने, P1 लाइसेंस को हटा दिया है. हम्म. तो वी हैव अ P2 लाइसेंस, और P2 लाइसेंस के अंदर आपको इंट्यून की सर्विस नहीं मिलेगी. ओके. इज दैट क्लियर? आपको सिर्फ और सिर्फ मोबाइलिटी प्लस सिक्योरिटी E5 के अंदर लाइसेंस मिलेगा इंट्यून की सर्विस को इनरोल करने के लिए, ये इस्तेमाल करना. क्लियर? ओके. ठीक है, क्लियर है. लेकिन लाइसेंसेस पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है लोगों का. जो क्वेश्चन है वो बहुत ज्यादा आपसे पूरा हो सकता है लाइसेंस के भी है पे. तो सर आई एम ये गोइंग टू जो शो यू. E1, हाँ E1 E5 में जो बेसिक मुझे डिफरेंस लगा वो यही है कि E1 जो है ना वो सारे एप्लीकेशन वेब पे यूज होते हैं, मींस ब्राउजर हाँ पे जी, यूज होते हैं E1 पे. बिल्कुल बिल्कुल. और E5 पे जो मतलब ब्राउजर पे भी यूज कर सकते हैं और इवन एप्लीकेशन भी यूज कर सकते हैं. आप मतलब डाउनलोड अगर भी कर सिर्फ सकते हैं. E1, हाँ E1 लाइसेंस अगर असाइन है तो हम आउटलुक का office.outlook यूज कर सकते हैं ब्राउजर पे, उसका हाँ जी, आउटलुक का ऐप यूज नहीं कर सकते उस अकाउंट से. एग्जैक्टली. आप अपने मशीन पे आउटलुक डाउनलोड करके इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे. नॉट ओनली द एप्लीकेशन, नॉट ओनली द आउटलुक, आप कोई भी हम्म. प्रोडक्ट है जो माइक्रोसॉफ्ट 365 प्रोवाइड कर रहा है, एक्सेल, पावर पॉइंट, उनमें से कोई भी डाउनलोड नहीं कर, आप वेब बेस पे यूज करिए बट आप डाउनलोड नहीं कर पाएंगे, उसको इंस्टॉल नहीं कर पाएंगे यस बेस सर. मशीन. यस सर. राइट. बट उसका इंटेंट से कोई मतलब नहीं है. जस्ट वांटेड टू क्लियर. वो सिर्फ आपके ऑफिस 365 के पैकेजेस को मैनेज करेंगे, उनकी सर्विसेज को मैनेज करेंगे. इन ट्यून की सर्विस आप अपने E1 या E5 लाइसेंस से इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे. अगर आपको कोई डिवाइस इनरोल करनी है तो आपको मोबिलिटी प्लस सिक्योरिटी E5 लाइसेंस असाइन करना ही पड़ेगा. गॉट इट व्हाट आई एम सेइंग? वो सभी लाइसेंसेज आपके 365 के लिए हो सकते हैं, उनके सर्विसेज के लिए हो सकते हैं, बट इन ट्यून के साथ उनका कोई इन्वॉल्वेशन नहीं है, उनका कोई इस्तेमाल नहीं है इन ट्यून के लिए. दैट्स वाई एड ऑन लाइसेंस पे हमें जाना ही पड़ता है, एड ऑन लाइसेंस हमें कॉन्फ़िगर करना ही पड़ता है या परचेज करना ही पड़ता है. इज दैट क्लियर? यस, क्लियर. चलो.
यहाँ पे हम एडी पे आ जाते हैं, थोड़ा सा लाइसेंस के बारे में बात करेंगे क्योंकि मेन एजेंडा हम लोगों का है आज कंडीशनल एक्सेस और कंप्लायंस पॉलिसी को परफेक्ट तरीके से तैयार करना, कि इन केस कोई पूछता है या हमें इन फ्यूचर लगाने की जरूरत पड़ती है क्लाइंट के लिए, तो वी शुड नो अबाउट कि क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं कंडीशनल एक्सेस और कंप्लायंस पॉलिसी में। तो लाइसेंसेस के बारे एक में बात करें। थोड़ा सा मुझे डाउट था, जो अभी आपने लाइसेंस बताया वो हाँ जी, मतलब E5 का वो मतलब पार्ट है पैकेज का, या अलग से परचेज करना होगा हमें अच्छा ठीक है। एंटरप्राइज अब मैं मोबिलिटी का? थोड़ा सा और क्लियर कर दूं इसमें, थोड़ा सा और क्लियर कर दूं, जो एड ऑन लाइसेंस की बात करते हैं ना, एड ऑन हम्म। लाइसेंस, चलिए दो पार्ट में कैटेगराइज कर लेते हैं। पहले हम ऑफिस के लाइसेंस की बात कर लेते हैं, ठीक है। ऑफिस पैकेज के लाइसेंस की बात कर लेते हैं। ओके। तो ऑफिस पैकेज के लाइसेंस में आपको बहुत सारी लिस्ट मिल जाएगी। E1 आपका है, E3 है आपके पास, F3 इज ऑल्सो अवेलेबल, राइट, E5 लाइसेंस है अपने पास। ये सभी यस। लाइसेंसेस जो हैं ये हमारे ऑफिस के पैकेज के लिए, राइट। अब हम्म। क्वेश्चन ये आता है कि एड ऑन लाइसेंस या इंट्यून लाइसेंस क्या है। एड ऑन लाइसेंस जो है, माइक्रोसॉफ्ट आपको कॉम्प्लीमेंट देता है पहली चीज तो। एड ऑन लाइसेंस विच इज अप्लीकेबल फॉर द ऑल टाइप्स ऑफ पैकेज दैट वी हैव, मतलब ये कि आपको इसमें P2 भी मिल जाएगा। एड ऑन लाइसेंस के अंदर आपको P2 लाइसेंस मिलेगा और मोबिलिटी प्लस सिक्योरिटी E5 प्लस सिक्योरिटी E5 लाइसेंस आपको मिल जाएगा। नाउ क्वेश्चन, ये जो लाइसेंस है आपका, ये लाइसेंस आपका अप्लीकेबल है E1 के साथ भी, E3 के साथ भी, F3 के साथ भी और E5 के साथ भी। मतलब आपके पास पैकेज क्या है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप E1 चला रहे हैं, F3 चला रहे हैं, E5 चला रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको ये दोनों लाइसेंस कॉम्प्लीमेंट में मिलेंगे। इज दैट ओके? और ये आपको देता है कितना, 100 लाइसेंसेस। स्टार्टिंग की बात कर रहे हैं, इसमें आपको मिलेंगे 100 लाइसेंसेस। कितने दिन के लिए? 30 डेज के लिए। ये कॉम्प्लीमेंट है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से कि आप इनमें से कोई भी लाइसेंस या टेनेंट परचेज करोगे, आपको P2 के 100 लाइसेंसेस मिल जाएंगे और 30 दिन की वैलिडिटी मिल जाएगी। मोबिलिटी प्लस सिक्योरिटी E5 में हमें जो लाइसेंसेस मिलेंगे वो मिलेंगे 250, और इसकी जो वैलिडिटी होगी वो होगी आपकी 90 डेज के लिए। लेकिन ध्यान रखना, आफ्टर 90 डेज यू हैव टू पे द अमाउंट फॉर योर लाइसेंस। 3 महीने बाद आपको मोबिलिटी प्लस सिक्योरिटी E5 के लाइसेंस के लिए आपको पेमेंट देनी पड़ेगी सेपरेट। इस पैकेज से कोई मतलब नहीं है। आपका पैकेज कितने का चल रहा है, नॉट एन इशू। आपका पैकेज पड़ रहा है फॉर एग्जांपल 1500 पर मंथ पर यूजर का, आपको एड ऑन लाइसेंस अलग से लेना पड़ेगा अगर आप डिवाइस को इनरोल करना चाहते हैं। तो सर क्लियर? 90 डेज के लिए फ्री होता है और 30 डेज के लिए? 90 डेज में फ्री रहता है फॉर द प्रैक्टिस पर्पस। ओके। 250 लाइसेंसेस रहते हैं। बट लोगों को क्वेश्चन ये आता है फिर हम इन फ्यूचर मींस आफ्टर 90 डेज आई नीड टू परचेज अ 2 डिफरेंट लाइसेंस। हमें तो ऑफिस की सर्विसेज भी इस्तेमाल करनी है और इंट्यून की डिवाइस भी इनरोल करनी है, तो हमें इस केस में 2 लाइसेंसेस रिक्वायरमेंट की रिक्वायरमेंट होगी। माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया, जो मींस डेफिनेटली हर एक कंपनी अगर इंट्यून का इस्तेमाल कर रही है तो लाइसेंस तो जरूरी है। माइक्रोसॉफ्ट ने एक और लाइसेंस हमें प्रोवाइड किया है विच इज बिजनेस प्रीमियम। जब आप बिजनेस प्रीमियम परचेज करते हैं ना तो उसमें आपको दोनों चीजें मिल जाती हैं एक साथ। उस केस में आपको अलग से एड ऑन लाइसेंस लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन बिजनेस प्रीमियम की जो कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा है। अगर आप यहाँ पे बिजनेस प्रीमियम लाइसेंस लेते हैं, ठीक है, तो बिजनेस प्रीमियम के अंदर आपको सारी सर्विसेज मिल जाती है। सारी सर्विसेज इन द सेंस ऑफिस 365 का पूरा पैकेज मिल जाएगा। हर एक सर्विस, हर एक टूल आप आसानी से इस्तेमाल कर पाएंगे, कंप्लीट ऑफिस पैकेज मिल जाएगा। और साथ ही साथ आपको इंटीन की फैसिलिटीज मिल जाएगी। ऑफिस के सर्विसेज या क्लाउड के जो एप्लीकेशंस हैं वो तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, ऑफिस पैकेज मिल जाएगा इसमें। और माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून सर्विस के लिए आपको एड ऑन लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। इसी लाइसेंस में हम नंबर ऑफ डिवाइसेस को इनरोल कर पाएंगे।
Is that okay about the licensing type? Please confirm. Hello. सर आप आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, हाँ जी. I can hear you. Please tell me. इसमें थोड़ा सा और एक लाइव एग्जांपल आपको दिखाते हैं कि क्या एक्चुअली में हम यहाँ पे टास्क परफॉर्म करना चाहते हैं. ये अपने पास ऑफिस 365 का पोर्टल है, और इस ऑफिस 365 पोर्टल के अंदर मैंने जो लाइसेंस परचेज किया है, मेरा जो लाइसेंस है वो है E5. ठीक है. तो एज वी डिस्कस्ड, E5 की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ये सिर्फ आपको क्लाउड एप्लीकेशन प्रोवाइड करेगा. जो क्लाउड से रिलेटेड एप्लीकेशन है वो उनको असाइन करा सकते हैं, एक्सेल, एक्सेस, पावर पॉइंट या जो भी अदर सर्विसेज है उनको असाइन कर सकते हैं. अब यहाँ पे हमारे पास ऑन प्रोमाइसेस डिवाइस है, और हम इसको, इस C5 लाइसेंस को GCP एक यूजर क्रिएट किया था, इस GCP यूजर के लिए असाइन करना चाहते हैं. तो नंबर ऑफ लाइसेंसेस की जो रिक्वायरमेंट होगी अपने पास इनरोलमेंट के लिए, एक तो अपना E5 लाइसेंस है ही है, और दूसरा हमने एक लाइसेंस और परचेज किया, मोबिलिटी प्लस सिक्योरिटी E5. अब यहाँ पे आपको दोनों लाइसेंस असाइन करने की रिक्वायरमेंट होगी. आप यहाँ पे दोनों लाइसेंसेस असाइन करेंगे. अगर आप डिवाइस को इनरोल भी करना चाहते हैं, उसके लिए आपका मोबिलिटी प्लस सिक्योरिटी E5 लाइसेंस लगेगा. अगर आप अपने डिवाइस को, आप अपने डिवाइस या पर्टिकुलर यूजर को सिर्फ ऑफिस की सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहते हैं, तो आप ये लाइसेंस असाइन करें. तो इस केस में जैसे GCP हमारा एक यूजर है, ऑफिस के प्रोडक्ट को यूज करने के लिए हमें E5 का लाइसेंस चाहिए, और ग्रेट. डिवाइस इनरोल करने के लिए किसको, मतलब डिवाइस पे लाइसेंस असाइन करेंगे या GCP को ही लाइसेंस असाइन होगा? दोनों नहीं, लाइसेंस कहने का मतलब? यूजर ओके. को असाइन करेंगे दोनों लाइसेंस. चलिए मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाता हूँ, इसका क्लियर हो गया होगा. तो अब जैसे अपने पास दोनों लाइसेंस यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं, दिस इज द एंटायर लाइसेंसेस दैट वी हैव. 5 लाइसेंस हमने इसमें असाइन किए, 3 लाइसेंस इसमें हम कंज्यूम कर चुके हैं, राइट. और मीन वाइल लेट मी टर्न ऑन माई ऑन प्रोमाइसिस मशीन, ताकि आपको प्रैक्टिकली दिखा सकें कि किस तरीके से ये लाइसेंसेस काम करते हैं. क्योंकि मोस्टली क्या होता है, जो क्लाइंट के साथ प्रॉब्लम आने का जो मेन रीजन है ना, क्लाइंट क्या करता है, E5 लाइसेंस असाइन करने के बाद उसी यूजर और पासवर्ड से अपने लोकल मशीन को इनरोल करने की कोशिश करता है. बार बार उसको एरर आता है, बार बार उसको प्रॉब्लम्स आती हैं टू इनरोल द डिवाइस. ठीक है. तो यू शुड नो अबाउट कि ठीक है, सिर्फ एक लाइसेंस से काम नहीं चलने वाला, यू ऑल्सो नीड टू असाइन द लाइसेंस फॉर द enrollment purpose या for the adding our device from on premises to 365 portal. ये Windows 10 मशीन हमने on premises पे क्रिएट कर रखी है, and I'm planning to enroll this device over a Microsoft Intune portal. मेथड कोई सा भी हो सकता है, बट आई वांटेड टू प्रोसीड विद डिफरेंट वे. इस डिवाइस को हम इनरोल करना चाहते हैं बाय यूजिंग Microsoft 365 F5 लाइसेंस या E5 लाइसेंस के थ्रू हम इस डिवाइस को इनरोल करना चाहते हैं. दिस इज माय फ्रेश कंप्यूटर, फ्रेश मशीन है, इसमें कोई भी चेंजेस हमने नहीं किया. बैक टू द पोर्टल and let me create one user for the identification. Just need to click one on the user panel. Although I have already created multiple user accounts, so but I don't know about the password. हम दोनों तरीके से यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं. फाइन, लेट मी क्रिएट न्यू यूजर, और इस यूजर को हम नाम दे देते हैं GCP, which is associated with teachmecloud.net. Display name is also GCP.
Password, let me choose my own password और सिंपल से इसको क्रिएट कर देते हैं. आई डोंट वांट टू मेक इट मेंबर ऑफ एनी रोल्स. हमने यहाँ पे एक फ्रेश यूजर क्रिएट किया और फ्रेश यूजर क्रिएट करने के बाद लेट मी ट्राई टू लॉग इन ऑन इनकॉग्निटो विजिट office.com. Try to log in your office.com. Try to log in your website, account using GCP at teachmecloud.net. एंड जो भी पासवर्ड अभी आपने कॉन्फ़िगर किया था उस पासवर्ड के थ्रू लॉगिन करा लो. ओके, बाय डिफॉल्ट इट्स लॉक बिकॉज हमने एक ही बार में नेक्स्ट कर दिया था. तो आप यूजर्स की प्रॉपर्टीज पे जाओ. पहले तो अपना यूजर अनलॉक करो. सेलेक्ट योर यूजर्स एंड अंडर द यूजर्स वी जस्ट नीड टू क्लिक ऑन एडिट ऑप्शन और इसको कर दो आप इनेबल. लेट्स ट्राई टू लॉग इन योर GCP अकाउंट. We successfully log in our user account with the help of GCP. We are able to open our Office 365 portal. But unfortunately, इस particular portal पे हमें कोई भी product नहीं मिल पा रहे हैं. We are unable to find any product क्योंकि हमने इसको Microsoft 365 का license नहीं provide किया. So what you need to do, back to the root account और इस user को ना एक license assign कर देते हैं. Go to the users properties, select licenses, click assignments और यहाँ पे हम इसको लाइसेंस असाइन कर रहे हैं Office 365 का और save the configuration. You always try to assign the license with the help of group. तो एक फटाफट से ग्रुप बना लेते हैं. यहाँ पे हम ग्रुप बना देते हैं. Security type O365-Intune group. सेलेक्ट द मेंबर्स. सो अभी अपने पास एक ही यूजर है तो हम GCP को यहाँ पे ऐड करा देते हैं. सेलेक्ट एंड क्रिएट. नाउ असाइन द लाइसेंस टू आवर ग्रुप. जो हम Office 365 का लाइसेंस असाइन करना चाहते हैं, आई एम गोइंग टू अप्लाई द लाइसेंस यूजिंग द ग्रुप दैट वी क्रिएटेड. Select your group, open it, licenses. I don't want to assign the license for the enrollment, इसलिए Office 365 E5 license को हम यहाँ पे assign कर देते हैं. Once you assign the license, back to the portal और इस पेज को थोड़ा सा रिफ्रेश करते हैं. It may be take सॉरी time. मुझे एक चीज जाननी थी कि अब आपने जो ग्रुप बनाया है उस ग्रुप में अगर हम 2-4 यूजर और क्रिएट कर दें तो ये लाइसेंस हाँ. उन पे भी अप्लाई हो जाएगा? एक नहीं, सबका अलग अलग लाइसेंस कंज्यूम होगा. ओके, मींस आपने जो ग्रुप पे लाइसेंस असाइन किया वो किसी एक ही यूजर को असाइन होगा उस ग्रुप के नहीं अंदर? नहीं नहीं नहीं. सी, अब जितने भी नंबर ऑफ यूजर इसमें असाइन करते जाएंगे, जैसे आपने 5 हाँ यूजर असाइन किए, इस ग्रुप के अंदर रखा है, लाइसेंस हमने हाँ एक ही दे रखा है, करेक्ट. हम्म तो अगर आपने 4 यूजर इसके अंदर असाइन किया है ना, तो चारों का लाइसेंस अलग अलग कंज्यूम हो. आपने ओके किया है ग्रुप पे, बट इन चारों हम्म बंदों को अलग अलग लाइसेंस असाइन होगा और वो कंज्यूम होगा. इट मींस क्या नहीं, तो सेपरेट? इसका मतलब ये हो गया ना, इसका मतलब ये हो गया कि आप ये कह रहे हैं कि हमें अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए ग्रुप बना रहे हैं. सपोज दैट कि हमारे पास E1 भी यूजर्स हैं और E3 भी है, E5 भी है, तो हमने E3 E5 के कैटेगराइज करके ग्रुप बना लिया और उसके अकॉर्डिंग हम लाइसेंस असाइन कर रहे हैं. आप ऐसा भी बोल सकते हैं और ये भी बोल सकते हैं कि थोड़ा सा टाइम सेव करने के लिए हमने ग्रुप बना दिया, जो भी बंदा नया आएगा उसको हम उठा के इसी ग्रुप में उसको रखते जाएंगे ताकि उसको लाइसेंस मिलता जाए. करेक्ट. करेक्ट. कि हर एक बंदे को सेपरेटली जाके उसकी प्रॉपर्टीज में हम लाइसेंस असाइन कर रहे हैं तो इट विल टेक टाइम.
तो हमने उठाया उस यूजर को, इसी ग्रुप में मेंशन किया, ऑटोमेटिक उसको लाइसेंस असाइन हो गया। डे 1 से उसने ऑफिस 365 की सर्विसेज इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया, एंड नाउ वी आर एबल टू यस एक्सेस द एंटायर एप्लीकेशंस। यहाँ पे देखिए सारे यस एप्लीकेशंस आ होता है हमारे यहाँ। मतलब अगर किसी को जीएसकेलर की सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है वीपीएन की, तो हम सिंपली उस हाँ जी, यूजर को उठा के एक ग्रुप में डाल देते हैं। एक ग्रुप अलग से बना हुआ है, उस ग्रुप में डाल देते हैं। और अगर बिल्कुल लाइसेंस भी देना है तो हम एक लाइसेंस असाइन ना करके उसके एक ग्रुप में डाल देते हैं, वो असाइन हो जाता है लाइसेंस उस पर। करेक्ट ये करेक्ट चीजें फॉलो करेक्ट। करते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट? नहीं, यहाँ तक तो नहीं है मुझे। ओके, नॉट फ्रॉम एक्चुअली माय हम लोगों का मेन मोटो क्या है ना, कि अभी जो हमने यूजर असाइन किया है, यूजर जो क्रिएट किया है, यू नो दैट कि हमने सिर्फ इसको माइक्रोसॉफ्ट 365 का E5 वाला साइड। लाइसेंस प्रोवाइड किया है। सो आई एम यस नॉट गोइंग टू मेक एनी चेंजेस, क्योंकि वी आर ऑन पेज ऑफ इंट्यून, तो हम डायरेक्टली आ जाते हैं अपने ऑन प्रीमाइसेस डिवाइस पे, और इस डिवाइस को हम इनरोल करना चाहते हैं। आई वांटेड टू इनरोल दिस डिवाइस। सेटिंग्स में जाते हैं, सेटिंग्स में जाने के बाद सेम यूआरएल का प्रोसीजर इस्तेमाल कर रहे हैं। डिस्कवरी यूआरएल के थ्रू हम इसको इनरोल करना चाहते हैं। इंटरनेट एक्सेस है, रूट एडमिन से हमने लॉगिन कर रखा है, रूट अकाउंट से लॉगिन कर रखा है, एवरीथिंग इज ओके। आई एम जस्ट गोइंग टू इनरोल दिस डिवाइस विद द हेल्प ऑफ जीसीपी यूजर, gcp @pagemecloud.net, और जो भी पासवर्ड आपने रखा है वो पासवर्ड। अब आप यहाँ पे डिस्कवरी यूआरएल का लिंक दीजिए, तो आई एम जस्ट गोइंग टू कॉपी द डिस्कवरी यूआरएल। इंट्यून पे चलते हैं, यहाँ पे डिवाइसेस पे जाएंगे, अंडर द डिवाइसेस विंडोज की मशीन है, विंडोज के अंदर विंडोज इनरोलमेंट पे जाएंगे, ऑटोमेटिक इनरोलमेंट प्रोसेस पे जाएंगे, एंड जस्ट कॉपी द डिस्कवरी यूआरएल फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पेज। दिस इज द तो डिस्कवरी यूआरएल। डिस्कवरी डिस्कवरी यूआरएल जो है वो एक ही रहता है, सेम कॉमन रहता है सारे डिवाइस के लिए, या डिफरेंट डिफरेंट जनरेट होंगे? Discovery URL is applicable, single discovery URL applicable to enroll multiple devices. आपको सिर्फ यूजर बदलने पड़ेंगे enroll के लिए। ओके। Discovery सर URL would be same. एक यहाँ पे थोड़ा सा डाउट है कि अगर सपोज कि हाँ जीसीपी की जगह हम 2-4 यूजर और क्रिएट कर लेते हैं और 2-4 हाँ मशीन जी, और भी हमें यूज करनी होती, तो ये जो हाँ, डिस्कवरी यूआरएल है सेम ही होता सबके लिए? सबके लिए सेम होगा। ठीक है। ठीक है, because the discovery URL applicable to enroll only Windows 10 and Windows 11, ये भी ध्यान रखना है हमें। ओके It is not applicable for Mac machine, Linux machine, Android machine। ओके ओके। तो ये इक्वल होता है। तो आई एम जस्ट गोइंग टू enroll, this is the discovery URL जो हमने कॉपी किया, उसको यहाँ पे पेस्ट किया, and try to click next and try to enroll it. Again you need to provide the password जो आपने इसका पासवर्ड मेंशन किया था। Let me sign in and try to check. We are getting the error. आप ध्यान से देखना इस एरर को, इन फ्यूचर आपको ऐसे एरर बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे। A server error occurred, please try again, और ये बाद में 0 समथिंग करके एरर दिखाई पड़ रहा है। इन फ्यूचर कभी भी ऐसा एरर आपको मिलता है तो 100% ये एरर आपके कुछ प्री रिक्विजिट जो आप फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं उसकी वजह से है। इज दैट क्लियर? यस सो क्लियर। कैन यू प्लीज हेल्प मी, ये एरर क्यों आया, क्यों हम इसको इनरोल नहीं कर पा रहे हैं? तो वो लाइसेंस की वजह से तो नहीं, हमने वो एक और लाइसेंस था इंटरप्राइजेज मोबिलिटी वाला, वो नहीं लिया तो इट मीन्स यूजर को। दैट इट्स प्रूव कि आपका जो 365 का लाइसेंस है ना, वो इंट्यून के लिए किसी काम का नहीं है। अगर आप डिवाइस इनरोल करना चाहते हैं तो आई डोंट थिंक कि आपका लाइसेंस ये काम करेगा। इज दैट करेक्ट? क्योंकि हमने इस यूजर को ना, अपने इस यूजर को सिर्फ एक ही तो लाइसेंस दिया है, सी ऑफिस 365 E5। हम इस लाइसेंस से पैकेज जो है ना उनको इस्तेमाल कर पा रहे हैं, टीम्स यूज कर पा रहे हैं, एक्सेल एक्सेस पावर पॉइंट सारी चीज सर्विसेज यूज कर पा रहे हैं, बट इनरोलमेंट में हमें ये एरर दे रहा है। इज दैट क्लियर? यस क्लियर। चलो, कुछ नहीं करना है हमें, उसी ग्रुप की प्रॉपर्टीज में फिर से चलते हैं, असाइनमेंट में चलते हैं, और असाइनमेंट में जाकर के इस इंटरप्राइज मोबिलिटी प्लस सिक्योरिटी E5 को चेक मार करके
सेटिंग्स को सेव कर लेते हैं। अब आपने कितने लाइसेंस दिए हैं अपने इस यूजर को? 2 लाइसेंसेस होते हैं। एक लाइसेंस जो है माइक्रोसॉफ्ट 365 की सर्विसेज के लिए है, दूसरा लाइसेंस जो है वो मोबिलिटी प्लस सिक्योरिटी E5 के लिए। ठीक है, वन मोर पॉइंट जस्ट वांटेड टू ऐड, मे बी कि जो बंदे पहले से काम कर रहे हैं इंट्यून पे या 365 पे, पिछले 3 साल पहले से काम कर रहे हैं, या 3 साल पहले उन्होंने टास्क परफॉर्म किया था, रिसेंटली टास्क नहीं परफॉर्म किया। पहले क्या होता था, आपकी इंट्यून की सर्विस जो है ना, P2 लाइसेंस के अंदर, यस P1 और P2 लाइसेंस के अंदर एप्लीकेबल होती थी। तो हम क्या करते थे, P2 लाइसेंस को असाइन किया और इनरोल करा लिया किसी भी डिवाइस को। लेकिन आज की डेट में P1 लाइसेंस है नहीं और P2 लाइसेंस से इंट्यून की सर्विस को रिमूव कर दिया गया है। अब किसी से डिस्कशन होता है कि P2 लाइसेंस से एनरोलमेंट मैंने करके देखा है, तो बिल्कुल करके देखा होगा, बट वो ओल्ड पोर्टल पे देखा होगा, ओल्ड एडी के साथ देखा होगा। आप भी राइट है कि P2 लाइसेंस के थ्रू हम एनरोल नहीं करा सकते, बिकॉज आपने इंट्रा एडमिन पे काम किया है, ना कि एज्यूर एडी पे, विच इज अपडेटेड वर्जन ऑफ आवर एज्यूर एक्टिव डायरेक्टरी। तो आज की डेट में P2 पे लाइसेंस नहीं है इंट्यून का, पहले इंट्यून का लाइसेंस P2 में अवेलेबल था। तो आप भी सही हो और जिस बंदे से डिस्कशन होगा आपका वो भी सही है, बट टाइमिंग का इम्पैक्ट है, वो पुरानी बातें कर रहा है और आप अभी लेटेस्ट पोर्टल की बात कर रहे हैं। इज दैट क्लियर नाउ? यस क्लियर। यस। नाउ अभी हमें कुछ नहीं करना, हमने लाइसेंस असाइन किया और हम अपने ऑन प्रोमाइसेस डिवाइस पे आ जाते हैं। I don't want to make any changes. Let me try to enroll my device with the help of same user one more time. GCP at teachmecloud.net. This is the user. Discovery URL हमने कॉपी किया था. Let me paste the same discovery URL. Next करते हैं और यहाँ पे हम ट्राई करते हैं क्रेडेंशियल प्रोवाइड करने का। And let's wait. थोड़ा सा टाइम लगेगा बिकॉज वी जस्ट असाइन द लाइसेंस, तो लाइसेंस को अप्लीकेबल होने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, राइट? सो वी हैव वेट टू 3 to 4 मिनट, 5 से 7 मिनट का टाइम लगता है वैसे, और फिर उसके बाद हम लोग एक बार ट्राई करते हैं या फिर मशीन को रीस्टार्ट करके देख लेते हैं ताकि इसके जो कैश मेमोरी है वो रिफ्रेश हो जाए। मुझे ये माइक्रोसॉफ्ट प्रीमियम टीम क्या होता है? माइक्रोसॉफ्ट प्रीमियम और बिजनेस प्रीमियम की बात कर रहे हैं? यस यस हाँ, टीम्स प्रीमियम। बिजनेस प्रीमियम इज अ टाइप ऑफ लाइसेंस. Okay, Microsoft Business Premium is a type of license that fulfill the entire requirement of any office. कॉस्ट थोड़ा सा ज्यादा है, इसका कॉस्ट थोड़ा सा ज्यादा है, बट आप ये लाइसेंस परचेज कर लेते हैं तो आपको एड ऑन लाइसेंस लेने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। आपके इंट्यून की सर्विस, आपके डिफाइंडर की सर्विस, आइडेंटिटी और कंडीशनल एक्सेस की सर्विस इसी टास्क से आप परफॉर्म कर पाएंगे, सॉरी इसी लाइसेंस से आप सारी चीजें मैनेज करेंगे। तो लेट मी जैसे ट्राई कि टू एक एनरोल। हाँ जी, जैसे कि एक तो हम जो बेसिक्स टीम यूज करते हैं अपने कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में, एक अलग से प्रीमियम टीम्स होता है, वो उसमें क्या डिफरेंस होता है उन दोनों में? ऑफिस 365 की केस में बात कर रहे हैं। हाँ, ऑफिस 365 में जैसे कि एक तो बेसिक्स टीम्स एप्लीकेशन यूज करते हैं और एक प्रीमियम होता है अलग से करके, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जिसमें अगर रिसेंटली भी यूजर लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, जैसे कि कोई स्पीक करता है कुछ जैसे फ्रेंड्स, तो उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं ऑटोमेटिकली, होती है वो वाला जो प्रीमियम। okay, let me help you to understand about the features related to the premium Teams Premium. Teams ओके। Premium is directly associated with artificial intelligence. क्या क्या फीचर्स मिलते हैं इसमें? The Teams Premium can provide you additional security that give us option for more personalization. आप अपने सर्विसेज को अपने अकॉर्डिंग पर्सनलाइज कर सकते हैं।
फुल्ली प्रोटेक्टेड, और आप इसमें वॉइस कन्वर्टर और बहुत सारे छोटे छोटे फीचर्स रहते हैं जो आपके सर्विसेज को, जो आपके डे टू डे एक्टिविटी को थोड़ा सा आसान बनाते हैं। बट ओके इसके लिए आपको एडिशनल पेमेंट करना पड़ता है। अभी शायद इसमें कुछ डॉलर्स हैं, लाइक $7 और $9 आपको पर लाइसेंस और ऐड करने पड़ेंगे अगर आप ओके टीम्स प्रीमियम यूज करते हैं तो। क्लियर? ओके क्लियर। तो उसके मतलब लिए लाइसेंस का नेम क्या है, कोई नेम वगैरह उसका लाइसेंस का? टीम्स प्रीमियम का जो लाइसेंस है विच इज कंसिडर एज ए एड ऑन लाइसेंस। ओके, एड ऑन हमारे पास जो लाइसेंस। लाइसेंस है ना, हमारे पास जो लाइसेंस है, इसमें कोई भी लाइसेंस आपके टीम्स प्रीमियम का एक्सेस नहीं देता। ओके आपको इसी टीम्स का इस्तेमाल करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट टीम्स प्रीमियम के लाइसेंस पे जाके इन्वॉल्व होना पड़ेगा। उसका नाम भी यही है, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स प्रीमियम। सेवन यस डॉलर यस। पर यूजर पर मंथ, $7 पर यूजर पर मंथ एडिशनल चार्ज है इसका। ओके ओके। और ये मतलब जो ऑफिस 3, ओके ओके, यस, जो ऑफिस टीम्स हम 365 लाइसेंस में हम जो लाइसेंस होते हैं वो डिवाइस बेस और यूजर बेस अलग अलग होते हैं क्या दोनों? एक हम जो डिवाइस बेस लेते हैं या फिर यूजर बेस लेते हैं? एक यूजर को प्रोवाइड किया जाता है लाइसेंस, एक डिवाइस को प्रोवाइड किया जाता है। नहीं, डिवाइस पे लाइसेंस नहीं होता ना, डिवाइस तो उसी यूजर के थ्रू, लाइसेंस के थ्रू हम इनरोल करते हैं। जैसे कियोस्क कंप्यूटर होते हैं, कियोस्क में अगर मान लो कि मल्टीपल यूजर लॉगिन करते हैं तो हाँ, अगर यूजर के पास लाइसेंस नहीं हो तो उसी एक डिवाइस को प्रोवाइड कर दिया जाता है लाइसेंस, वो क्या सिनेरियो होता नहीं, है? फिर वो टर्मिनल उस में केस कंसिडर में नहीं क्या होता। होता है, उस केस में क्या होता है, उस केस में जैसे सपोज करो आपकी कियोस्क मशीन है, तो उस डिवाइस को जैसे हम यूजर लाइसेंस असाइन करते हैं ना, तो उस जो सपोज करो कि जीसीपी एट teachmecloud.net है, तो वहाँ पे उस डिवाइस का नाम @teachmecloud.net कर देंगे। तो वो एक ही डिवाइस कंज्यूम करेगा, एक ही मतलब वो लाइसेंस कंज्यूम करेगा और सारे यूजर आके अपना लॉगिन करेंगे, उसका ऑफिस एक्टिवेटेड रहेगा करेक्ट। इस केस में। अ, या फिर से रिपीट करना एक बार प्लीज, दोबारा से। जैसे सपोज करो कि आपने एक डिवाइस लिया, उसमें क्या किया कि आपका लैपटॉप है, आपने लॉगिन किया, जब मैं लॉगिन कर रहा हूँ तो मेरे को वहाँ पे मेरा भी लाइसेंस कंज्यूम करेगा, राइट। और आपने ओके क्या किया, आपका डिवाइस है उसमें, आपने क्या किया, आपका डिवाइस है, मान लो आपके लैपटॉप का जो भी होस्ट नेम है उसके आगे आपने टीच मी क्लाउड डॉट नेट लगा दिया और उससे ऑफिस एक्टिवेट कर दिया। अब जब भी आप कोई भी यूजर आए, कितने भी यूजर आए, लॉग इन करें, वो एक्टिवेटेड मिलेगा ऑफिस। अभी मुझे लगता है कि क्लियर हो गया होगा। नहीं यार नहीं क्लियर सपोज हुआ। करो कि आपका एक लैपटॉप है, नहीं, जैसे कि मान लो कि एक मैं बता रहा लैपटॉप हूँ, ले लिया। आपका एक हाँ लैपटॉप है, आपने, ठीक है, हाँ हाँ। आपका एक लैपटॉप है, आपने अपनी आपके मतलब ईमेल आईडी पे आपको ऑफिस 365 का लाइसेंस मिल गया, आपने अपनी ओके आईडी से ठीक है। लॉगिन करी, ऑफिस यूज किया, उसी लैपटॉप को ओके मैं यूज कर रहा हूँ, तो मेरे को ऑफिस दिखा रहा है कि आप इसमें एक्सेल वर्ड कुछ भी एडिट नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज यू डोंट हैव लाइसेंस, राइट। ओके राइट। अब मैंने क्या किया, डिवाइस को, आपका लैपटॉप का जो भी होस्ट है उसको लेके डोमेन नेम लगा दिया, जो मेरी मेल सर्वर का आईडी है, जैसे teachmecloud.net, आपका लैपटॉप जो भी होस्ट नेम है उसके आगे मैंने ओके डोमेन नेम लगा दिया और उस डिवाइस को लाइसेंस असाइन कर दिया। अब क्या होगा, सपोज करो कि आपने लॉगिन किया, फिर भी आपका डिवाइस एक्टिवेटेड है ऑफिस 365, मैंने लॉगिन किया, मैं भी जब लॉगिन करूंगा तो वो डिवाइस पे लाइसेंस चला गया। क्लियर? ओके। बट अभी हमारे पास तो यहाँ पे है ना, मंजीत, मैं अच्छा, एक चीज पूछना चाहता हूँ। जैसे कि हमने एक, जैसे कई कंप्यूटर ऐसे होते हैं जो शेड आईडी से हम लॉगिन करते हैं, उसको हम्म, हमने इनरोल किया है एज ए शेड आईडी। लाइक जैसे हम कियोस्क को इनरोल करते हैं, कि हम्म। जो पॉलिसी होती है, जैसे क्या नाम होता है उसको, मंजीत आप समझ रहे हो ना उसको, जो सेल्फ उसमें मोड में करते हैं जब इनरोल को किसी कंप्यूटर को। हाँ हाँ, ऑटो पायलट या प्रोफाइल के थ्रू। हाँ हाँ। तो हम, हमारे पास एक शेयर्ड आईडी है, उससे हम लॉगिन करते हैं, तो उसके लिए हमें एक डिवाइस बेस्ड लाइसेंस अलग से लेना पड़ता है। उसके लिए हमें कैटलॉग से रिक्वेस्ट रेज करनी पड़ती है, क्योंकि जो हमारे लाइसेंस है ना उसके अंदर चलते नहीं है वो।
तो ये मतलब सिस्टम समझ में नहीं आया हमें। अब मान लो मेरे पास लाइसेंस ऑफिस 3 मैं मेरे लैपटॉप पे यूज कर रहा हूँ, लेकिन मेरे को उस डिवाइस के अंदर अगर लॉगिन करना पड़ेगा तो उस डिवाइस बेस्ड लाइसेंस लेना पड़ेगा मेरे को, एक कैटलॉग से रेज करके। मैं अपना लाइसेंस यूज नहीं कर सकता उसके अंदर। ये नहीं क्या डिवाइस, डिफरेंट? नहीं, सॉरी, आप हाँ डिवाइस के लिए लाइसेंस, हम डायरेक्टली लाइसेंस को डिवाइस पे अप्लाई कर सकते हैं ना। हाँ सी वी हैव टू डिफरेंट मेथड, एक तो हम लाइसेंस अपने यूजर पे असाइन करते हैं, ठीक है। दूसरा लाइसेंस हम अपने डिवाइस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट क्लास में हमने ये डिस्कस किया था कि हाँ जब हाँ, हमने यही मैं ग्रुप, पूछना चाह रहा था। हाँ यही, जो अगर डिवाइस के ऊपर लाइसेंस अप्लाई किया जा सकता है ना, हाँ, कि कोई भी यूजर लॉगिन करे तो उसको मतलब फिर एक्टिवेट दिखना चाहिए। नहीं आप ये बोल रहे थे कि डिफरेंट लाइसेंस आता है डिवाइस के लिए, ओके 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 आपने ये बोला था कि डिफरेंट लाइसेंस आता है डिवाइस के लिए, यूजर के लिए अलग लाइसेंस आता है। नहीं, ओके लाइसेंस यही है, आप इसको यूज किस तरीके से करना चाहते हैं वो डिसाइड करना है आपने। ओके ओके ओके। इसके लिए डिवाइस बेस्ड लाइसेंस हो गया, मतलब डिवाइस के ऊपर कोई भी एग्जैक्टली, लॉगिन करेगा तो सेड आईडी से वो चलेगा। करेक्ट। लास्ट हम्म। लास्ट अभी जब हम ग्रुप बनाते हैं, थिंक अबाउट, जब हम यहाँ पे ग्रुप बनाते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल, जब आप ग्रुप बनाते हो, नया ग्रुप क्रिएट करते हो, तो ग्रुप के अंदर आपको दो तीन ऑप्शन दिखाई पड़ते हैं। लाइक मान लीजिए मैं टेस्ट बनाने जा रहा हूँ, ठीक है, और जब ठीक है आप टेस्ट ओके लाइसेंस क्रिएट, टेस्ट नाम का ग्रुप बना रहे हैं, तो अभी आपको ये ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है किस चीज का, ऑनर का दिखाई पड़ रहा है और मेंबर्स का दिखाई पड़ रहा है। ऑनर्स और ओके मेंबर का मतलब है कि दोनों ही यूजर्स होने चाहिए। ऑनर जो है ओके टेक केयर करेगा, मेंबर्स जो है इस फैसिलिटी को इस्तेमाल करेंगे अगर आप कोई लाइसेंस देते हैं। ठीक लेकिन है हम इसको यूजर्स के लिए ग्रुप बनाना ही नहीं चाहते हैं, हम इसको डायनेमिक डिवाइस के लिए बनाना चाहते हैं। जब आप ओके डायनेमिक डिवाइस पे को सेलेक्ट करते हैं ना, अब आप देखिए यहाँ पे यूजर का ऑप्शन हट गया है, ओके करेक्ट। और आपको यहाँ पे करेक्ट एक क्वेरी एग्जीक्यूट करनी पड़ती है, आपको एक क्वेरी यहाँ पे एडिट करके मेंशन करनी पड़ती है, जो क्वेरी अप्लीकेबल होती है हर एक डिवाइस के लिए। किसी ओके भी डिवाइस को एनरोल करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे वो क्वेरी एग्जीक्यूट करेंगे। क्वेरी एग्जीक्यूट करने के बाद उस पर्टिकुलर डिवाइस की प्रोफाइल को क्रिएट करके अपलोड करेंगे। अब उस डिवाइस को आप डायरेक्टली इस ग्रुप में ऐड कर लिए हैं, उस डिवाइस को आपने इस ग्रुप में ऐड कर लिया, और ग्रुप में ऐड करने के बाद जो भी लाइसेंस आप असाइन करोगे इस ग्रुप के अंदर, वो लाइसेंस आपके जितने भी यूजर लॉगिन करेंगे इस मशीन पे, हर एक बंदे को कंटिन्यू। ऑफिस का एक्सेस मिलेगा, किसी को ओ सेपरेट एक्सेस देने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। ओके 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 हाँ हाँ, सही, राइट, ये और ऐसे ही ये करा है। ये यूज हाँ किया हाँ जाता है वीडीआई सॉल्यूशन में, ये यूज किया ओके जाता है सिट्रिक्स में, होराइजन में, एज्योर वर्चुअल डेस्कटॉप में, कि वहां ओके पे एक मशीन को हमने असाइन कर दिया और उसके मल्टीपल यूजर आरडीपी एक्सेस कर पा रहे हैं वीडीआई की वजह से, तो हर एक बंदे को लाइसेंस देने की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि आपने डिवाइस को लाइसेंस दे रखा है। ठीक है, तो ओके यूजर 10 लॉगिन करेंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दसियों बंदे अलग अलग अपना पैकेज इस्तेमाल करेंगे, सॉफ्टवेयर की सर्विसेज, क्लाउड की या ऑफिस 365 की सर्विसेज का इस्तेमाल कर पाएंगे। इज दैट क्लियर नाउ? यस 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 यस, क्लियर क्लियर। चलो, अभी हमने अपने यूजर को लाइसेंस असाइन किया था, लेट मी ट्राई टू चेक कि क्या हमारा जो लाइसेंस है वो काम करने लगा है या नहीं। टीच मी क्लाउड डॉट नेट और सेव पासवर्ड, पहले यहाँ पे डिस्कवरी यूआरएल देते हैं एंड देन प्रोसीड टू प्रोवाइड। ओके, आई नीड टू कॉपी इट अगेन। कॉपी द यूआरएल और यहाँ पे करते हैं पेस्ट। नेक्स्ट, पासवर्ड प्रोवाइड करना है हमें अपने इस यूजर का एंड साइन इन। ठीक है, अब हमारी डिवाइस कोई एरर नहीं दे रही है एंड वी आर एबल टू इनरोल आवर डिवाइस। हमने अपने इस यूजर को इस्तेमाल करके ऑन प्रोमाइसेस डिवाइस को इनरोल किया, ओनली बिकॉज ऑफ हमने इसको मोबिलिटी प्लस सिक्योरिटी E5 का लाइसेंस दिया था। अब आपकी डिवाइस थोड़ी देर में क्लाउड पे दिखना स्टार्ट हो जाएगी।
तो नाउ इट्स क्लियर अबाउट कि भाई माइक्रोसॉफ्ट का जो आपके पास लाइसेंस है ना वो इंट्यून के लिए एप्लीकेबल नहीं है, और जो इंट्यून का लाइसेंस है ना वो आपके माइक्रोसॉफ्ट सर्विसेज के लिए एप्लीकेबल नहीं है। आप उससे ऑफिस पैकेज नहीं इस्तेमाल कर पाएंगे, टीम्स नहीं यूज कर पाएंगे, वन ड्राइव या अदर जो फैसिलिटीज हैं ऑफिस की वो आप यूज नहीं कर पाओगे। इज दैट क्लियर? द डिफरेंस बिटवीन बोथ, एवरीवन प्लीज कंफर्म। यस प्लीज। ये ठीक क्लियर है। हो गया। मेरा एक क्वेश्चन और था हाँ, कि क्या हम बैकएंड से डिवाइस रजिस्टर कर सकते हैं, इनरोल कर सकते हैं बैकएंड से? बैकएंड, बैकएंड का मतलब सॉरी? जैसे इंट्यून पोर्टल से हम डिवाइस को रजिस्टर कर सकते हैं। जैसे कि मेरे पास एक टूल है मैनेज इंजन का, हाँ, उसमें मैं क्या करता हूँ कि मैनेज इंजन में सिर्फ एजेंट इंस्टॉल करते हैं, उसके बाद से हम बैकएंड से ही इनरोल कर देते हैं यूजर्स के बिल्कुल नाम पे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसा पॉसिबिलिटी है आपकी आवाज कट रही है मेरे ख्याल से। या हमें ऐसे ही इनरोल करना पड़ेगा? देखो आपने एक टूल का नाम बताया, एंड वी हैव वन मोर टूल, माइक्रोसॉफ्ट कॉन्फ़िगरेशन डिजाइनर। अभी उस पर हम लोगों ने बात नहीं की है। उसको यूज किया जाता ओके है बल्क एनरोलमेंट पर्पज के लिए। माइक्रोसॉफ्ट के ओके प्ले ओके स्टोर में जा करके आप ये टूल डाउनलोड करेंगे। आई शो यू द प्रोसीजर। माइक्रोसॉफ्ट के स्टोर में जाकर के ये टूल डाउनलोड करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट कॉन्फ़िगरेशन डिजाइनर। और इस माइक्रोसॉफ्ट कॉन्फ़िगरेशन डिजाइनर के जरिए हम अपने बल्क इनरोलमेंट, जो आप कह रहे हैं ना बैक एंड वाला, बैक एंड से इनरोल यस करना, यस बिल्कुल बैक एंड यस से हो यस जाएगा। पोर्टल पे रिक्वायरमेंट नहीं है ओके हमें जाने की, वो सारी चीजें हो जाएगी। तो ये ओके हम गॉट क्लियर इट। कर देते हैं, ये क्लियर कर देते हैं। अभी यहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं है। और दूसरी चीज, लाइसेंस पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो 5 मिनट और चाहिए लाइसेंस को डिस्कस करने में, ताकि ये कंप्लीट करें, ताकि हम कंडीशनल एक्सेस पे मूव कर सकें। बिल्कुल। अभी हमने जो डिस्कशन हुआ वो बेसिकली रिलेटेड टू द लाइसेंसेस हुआ। अब यहाँ पे हम दो चीजें और बात करने वाले हैं। जब भी हम अपने इंट्यून लाइसेंस की बात करते हैं, जब भी हम अपने इंट्यून लाइसेंस की बात करते हैं, तो यू नो दैट आपका जो लाइसेंस है वो कितने यूजर या कितने डिवाइसेस को इनरोल कर सकता है। एक सिंगल लाइसेंस की बात कर रहे हैं, वो हमें मालूम होना चाहिए। सो हाउ मेनी डिवाइसेस वी आर एबल टू इनरोल विद द हेल्प ऑफ सिंगल इंट्यून लाइसेंस? एंटरप्राइज मोबाइलिटी प्लस सिक्योरिटी E5, ये हमारा लाइसेंस है, एड ऑन लाइसेंस है। ये हमारे पास एड ऑन लाइसेंस है। और आई वांटेड टू नो अबाउट कि अगर मैं ये लाइसेंस अपने GCP यूजर को दे रहा हूँ, ठीक है, तो हाउ मेनी डिवाइसेस वी आर एबल टू इनरोल विद द हेल्प ऑफ सेम GCP यूजर अकाउंट? मैक्सिमम डिवाइस की बात कर रहे हैं, कितने मैक्सिमम हो जाएगी और कितने डिफॉल्ट हो सकते हैं? हम शायद पहले इस पर डिस्कस कर चुके हैं। तो हाउ मेनी डिवाइसेस वी आर एबल टू इनरोल? अश्वनी? ये हम 250 लाइसेंस इसके लिए कर नहीं सकते नहीं हैं। नहीं, डिवाइसेस की बात कर रहे हैं। 15। मैक्सिमम मैक्सिमम 15 डिवाइसेस हम इसमें इस लाइसेंस के थ्रू या इस यूजर के जरिए कर सकते हैं, राइट? यस और सर। 5 डिफॉल्ट रहती है, और आप अपने अकॉर्डिंग इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। इज दैट करेक्ट? करेक्ट। 15 तो मैक्सिमम है, 5 आपकी डिफॉल्ट है। आपको लगता है कस्टमाइज करना है तो आप इसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं, क्योंकि एक बंदे के पास ना उसका लैपटॉप भी है, उसका डेस्कटॉप भी है, वो टैबलेट भी यूज करता है, वो मोबाइल फोन भी चलाता है। सो नाउ वो हर एक डिवाइस पे अपने इस यूजर को एक्सेस करना चाहता है। तो कंपनी क्या करेगी, GCP यूजर के जरिए इन सभी डिवाइसेस को
इनरोल कराएगी, ताकि कहीं से भी बंदा अपने माइक्रोसॉफ्ट 365 सर्विसेज को एक्सेस कर सकता है, यूटिलाइज कर सकता है। इज दैट क्लियर नाउ? यस, क्लियर। चलो, अगर लाइसेंस की पार्ट क्लियर हो गए हैं तो हम कंडीशनल एक्सेस और कंप्लायंस पॉलिसी पे मूव कर सकते हैं, आई थिंक। ओके, सो कैन वी मूव टू द कंडीशनल एक्सेस एंड कंप्लायंस पॉलिसी? यस सर, गो यस अहेड। प्लीज। चलो, पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं। अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है इन दोनों से रिलेटेड, डेफिनेटली आप अपने क्लाइंट की हर एक रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर पाओगे रिलेटेड टू द इंट्यून सर्विसेज। दोनों सर्विसेज को हम एक साथ इसलिए काउंट कर रहे हैं क्योंकि जो कंडीशनल एक्सेस है, या सॉरी जो कंप्लायंस पॉलिसी है, उसका यूसेज तभी होगा जब आप उस पर कंडीशनल एक्सेस लगाएंगे। लेट्स टॉक अबाउट कंप्लायंस पॉलिसी एंड दूसरा है अपने पास कंडीशनल एक्सेस पॉलिसी। कंप्लायंस पॉलिसी एंड दूसरा है अपने पास कंडीशनल एक्सेस पॉलिसी। लेट्स टॉक अबाउट द एक्चुअल यूसेज। ये अपना इंट्यून का पोर्टल है और यहाँ पे हम अपने डिवाइसेस को इनरोल करना चाहते हैं। दिस इज द इंट्यून पोर्टल और we have a n number of devices which are available on premises। ये हमारा लैपटॉप या डेस्कटॉप है। I wanted to discuss about the compliance policy। So basically the compliance policy, you can say that it will give you some important requirement। compliance policy आपके लिए कुछ प्री रिक्विजिट्स तैयार करती है, जैसे आपका जो पासवर्ड है मिनिमम 14 कैरेक्टर होना चाहिए। आपका जो पासवर्ड है वो कॉम्प्लेक्स होना चाहिए। डिवाइस की बात कर रहे हैं, जो आप डिवाइस इनरोल करना चाहते हैं। आपकी जो डिवाइस है उसके स्टोरेज में बिट लॉकर लगा होना चाहिए। आपकी जो डिवाइस है उसमें एंटीवायरस इंस्टॉल होना चाहिए। एज इट इज वी हैव अ नंबर ऑफ एग्जांपल्स। आपका जो डिवाइस है विच इज मस्ट बी in your on premises device, you must need to activate the Microsoft Defender। उसमें डिफाइंडर भी कॉन्फ़िगर होना चाहिए। तो ये जो लिस्ट है ना, 1 2 3 4 5, ये मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, आपको 20 से 25 लिस्ट मिल जाएगी एज पर द रिक्वायरमेंट। कंप्लायंस पॉलिसी में आपने सेटअप कर दिया ये सारी प्री रिक्विजिट्स। वन मोर पॉइंट जस्ट वांटेड टू ऐड, कंडीशनल एक्सेस सॉरी कंप्लायंस पॉलिसी आपकी इनरोल्ड हुई डिवाइसेस के लिए भी एप्लीकेबल है और जो आप नई डिवाइस इनरोल करना चाहते हैं उसके लिए भी एप्लीकेबल है। इज दैट क्लियर गाइस? समझ में आ रहा है ये चीजें? सर मेरा यहाँ पे क्वेश्चन है, हम्म, जैसे मेरा कंप्लायंस पॉलिसी में कुछ भी मतलब मैंने चेंजेस किए तो वो चेंजेस ओल्ड चीज डिवाइसेस के भी होंगे और न्यू पर भी होंगे, दोनों पे हो जाएगा वो? नहीं, ये जो एप्लीकेबल रहता है सील ना पे होंगे। वो आपके डिवाइस के लिए होता है। और नहीं, अगर आप एक्चुअली इस मैं इसलिए कंप्लायंस पूछ रहा हूँ, एक्चुअली ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मैंने अभी लास्ट वीक मेरे से गलती हो गई थी मेरे एनवायरनमेंट में। मुझे इंट्यून से पैचिंग करनी थी डिवाइसेस की, कुछ 1000 डिवाइसेस थी जो एसएससीएम से पैच नहीं हो रही थी, तो मैंने उनको वर्कलोड डिफाइन किया था, वो मुझसे हो गया था गलत डिफाइन। तो ठीक हमारी है, जो कंप्लायंस पॉलिसी है उसमें बिट लॉकर की सर्विस और विंडोज कंप्लायंस की सर्विस दोनों चलना बंद हो गई थी न्यू डिवाइसेस के ऊपर। करेक्ट। तो वही मैं पूछ रहा था आपसे। कंडीशनल सॉरी कंप्लायंस पॉलिसी में जो आपने सेटिंग की है, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग व्हिच इज एप्लीकेबल फॉर द बोथ टाइप्स ऑफ डिवाइसेस। जो ऑलरेडी इनरोल्ड है उनके लिए भी और जो नए इनरोल करोगे आप उनके लिए भी एप्लीकेबल है। अगर आप इनमें कोई चेंजेस करते हैं, राइट, इनमें आपको कोई चेंजेस करना है, आपको लगता है कि मैं डिफाइंडर का यूज नहीं है, एंटीवायरस का यूज नहीं है, इन फ्यूचर कुछ दिन बाद आप ये दो कंप्लायंस पॉलिसी हटा दिए, तो जितनी भी डिवाइसेस पहले थी इस कंप्लायंट के अंदर
वो भी रिमूव हो जाएंगे, उनका भी प्रीरिक्विजिट इससे रिमूव हो जाएगा। ओके ओके, क्योंकि मैं को क्लियर? मैनेजमेंट में जाके ना वर्कलोड मैंने गलत डिफाइन कर दिया, हाँ, तो इसलिए। डेफिनेटली अगर आपने इसमें कोई चेंजेस किया तो इसका इम्पैक्ट सब पे पड़ेगा, जो पुराने डिवाइस है उन पे भी, जो नए डिवाइस आएंगे उन पे भी। ओके ओके। अच्छा सर, वो मुझे एक्चुअली मैं जिस इन्वायरमेंट में काम करता हूँ वो आई एम अ सिंगल पर्सन, ठीक है। मुझे ही ओके, इंफ्रा देखना होता है, मुझे ही डिप्लॉयमेंट देखना, मतलब सब कुछ मुझे ही देखना होता है, और इवन वहाँ पे समझ गया। माइक्रोसॉफ्ट का सपोर्ट भी नहीं है। अच्छा, तो मुझे अगर कोई हेल्प चाहिए हो आपसे तो मैं आपसे कैसे कांटेक्ट कर सकता हूँ? ठीक है, फिर उसके लिए फिर हम लोग आफ्टरनून में, क्योंकि अभी मेरा भी वर्क फ्रॉम ऑफिस स्टार्ट हो गया है, तो 3 बजे के बाद से और सुबह 5 बजे, सुबह 4 बजे तक ये तो टाइम रहता है, तो बिटवीन 12 से 3 के बीच में हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। 12 से 3? हाँ, दोपहर में। क्योंकि हाँ, क्योंकि मुझे ना आप अगर आप मुझे टाइम दें आधे घंटे का आज या कल में, तो मेरे को एक इशू आ रहा है एससीसीएम से हम्म। रिलेटेड, और मुझे कहीं सोल्यूशन नहीं मिल रहा है उसका। तो एक काम करते हैं, कल का टाइम रखते हैं, कल एक टाइम रख लेते हैं, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है? हाँ, तो मुझे एक टाइम बता दीजिएगा, फिर मैं उस हिसाब से फिर मैं आपसे बात कर लूंगा। ठीक है, ठीक है, एक प्रोजेक्ट भी बन जाएगा हम लोगों के लिए, वो ट्रबल शूटिंग का, कोई दिक्कत नहीं। जी जी जी। हम्म? मैं लाइव आपके पास मेरे पास है एनी डेस्क से रिमोट शेयर करने का फीचर है मेरे पास। कोई नहीं, हम लोग टीम्स पे कनेक्ट होकर के आप स्क्रीन शेयर कर देना, वहाँ पे भी दिख जाएगा। तो नहीं, एक्चुअली टीम चलता नहीं, टीम पे शेयर तो चलेगा नहीं, वो एनी डेस्क पे हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं अच्छा, उसमें। ठीक है, ठीक है, तो ठीक है, हाँ, तो आप रिमोट ले सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है एनवायरनमेंट का मेरा। ठीक है, डन। ठीक है, ओके, थैंक यू। चलो, कंप्लायंस पॉलिसी की बात कर लेते हैं। कंप्लायंस पॉलिसी में ये हमने एक कंप्लायंस पॉलिसी डिसाइड की, जिसमें कुछ प्री रिक्विजिट सेटअप कर दी कि अगर हम अपनी डिवाइस को मैनेज करना चाहते हैं तो ये प्री रिक्विजिट होनी चाहिए। अब इसी कंप्लायंस के भी ऐप पे कंप्लायंस पॉलिसी क्या करेगा, सिर्फ आपको हाईलाइट कराएगा कि आपने ये जो डिवाइस एनरोल की है ना, ये नॉन कंप्लायंट होनी चाहिए। अगर इनमें से कोई भी कंप्लायंस आ रहा है, मान लीजिए आपने बिटलॉकर नहीं कॉन्फ़िगर किया, एंटीवायरस नहीं कॉन्फ़िगर किया या डिफेंडर नहीं कॉन्फ़िगर किया, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका क्रॉस में आ जाएगा रेड मार्क करके। आपने पॉलिसी पासवर्ड फुलफिल किया है, ये आपका चेक मार्क रहेगा। पासवर्ड की लेंथ और कॉम्प्लेक्स आपने फुलफिल किया है, ये आपका चेक मार्क में आ जाएगा, मीन इट्स वर्किंग प्रॉपरली। बट ये 3 चीजें आपकी जो है वो कंप्लायंस आ रही है। अब इस सिचुएशन को उठा करके हम ले जाएंगे कंडीशनल एक्सेस में। कंडीशनल एक्सेस क्या करेगा, अगर इनमें से किसी भी रिक्वायरमेंट को फुलफिल आपने नहीं किया कंप्लायंस की, तो कंडीशनल एक्सेस क्या करेगा, आपकी डिवाइस को ब्लॉक कर सकता है, आपके डिवाइस के लॉगिन को स्टॉप कर सकता है, या फिर इसकी सारी सर्विसेज को स्टॉप कर देगा कि यू आर अनेबल टू यूज एनी प्रोडक्ट ऑफ आवर माइक्रोसॉफ्ट 365, क्योंकि आपकी डिवाइस कंप्लायंस नहीं है, आपकी डिवाइस कंप्लायंस है, इसको नॉन कंप्लायंस होनी चाहिए। आप कोई भी ऑफिस का टूल या ऑफिस की सर्विसेज नहीं इस्तेमाल कर पाओगे अगर आपकी डिवाइस कंप्लायंस है। तो नॉन कंप्लायंट है तो कंडीशनल एक्सेस अलाउ कर देगा, कंप्लायंस है तो इसमें आपकी कोई भी सर्विसेज माइक्रोसॉफ्ट 365 की वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, वन ड्राइव, टीम्स कुछ भी नहीं चला पाएंगे। गाइस, थोड़ा सा आप क्लियर करिए कि ये चीजें समझ में आई क्या हम कहना चाहते हैं कंप्लायंस पॉलिसी और कंडीशनल एक्सेस को मिला करके। कंप्लायंस पॉलिसी में हम मींस पॉलिसी सेट करते हैं अपने अकॉर्डिंग, हाँ और जी, कंडीशनल एक्सेस हम वो लगाते हैं ताकि अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रही, लाइक अगर मशीन नॉन कंप्लायंस कुछ भी हो रहा है, तो वो एक्सेस लगा देगा कि हाँ आप ये सर्विस को यूज नहीं कर पाएंगे, जैसे एंटीवायरस है, बट लॉकर है, पासवर्ड लॉगिन का है, यही चीज है ना। थोड़ा सा रिपीट करो एक बार, नहीं समझ में आया। कंप्लायंस पॉलिसी में जैसे कंप्लायंस में हमारा पासवर्ड का है, और बिटलॉकर होना चाहिए, एंटीवायरस, इन चीज़ों की सर्विसेज होती हैं। ठीक है, और कंडीशनल एक्सेस हम उसके ऊपर लगा देते हैं कंप्लायंस पॉलिसी के ऊपर, कि लाइक अगर कोई मशीन या मतलब कोई मतलब यूजर को हम चाहेंगे लॉगिन ना कर पाए तो लॉगिन नहीं कर पाएगा, अगर कंडीशन लगा देंगे उसके ऊपर। ऐसा ही मेरा कहने का मतलब ये था। हाँ ठीक है। आप ये भी एग्जांपल दे सकते हैं, आप ये भी एग्जांपल दे सकते हो कि
डिवाइस को हमने इंट्यून पे भी एनरोल कर रखा है, और उसी यूजर को, जिस यूजर का इस्तेमाल करके डिवाइस को एनरोल किया है ना, उसी यूजर का इस्तेमाल करके हमने ऑफिस 365 की सर्विसेज दे रखी है उसको, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, जैसे हमने अभी जीसीपी के साथ किया है। जीसीपी क्या कर रहा है, सभी चीजें एक्सेस कर पा रहा है, लेकिन हम इसमें कंडीशनल एक्सेस लगाने वाले हैं और कंप्लायंस पॉलिसी लगाने वाले हैं। अगर हम इसके कंडीशनल कंप्लायंस पॉलिसी को फुलफिल नहीं कर पाएंगे तो ये सर्विसेज ब्लॉक हो जाएगी, हम नहीं एक्सेस कर पाएंगे। ये सिक्योरिटी की वजह से हम करना चाहते हैं। क्लियर? लॉगिन करेगा बंदा, लॉगिन कर पाएगा, बट इनमें से कोई भी चीज एक्सेस नहीं कर पाएगा। ओके ओके। है ना? आप चाहो तो लॉगिन ब्लॉक कर दो, या आप चाहो तो कस्टमाइज करके एप्लीकेशन ब्लॉक कर दो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। सो कैन वी प्रोसीड गाइस? यस यस। चलो, डिवाइस हमारी आनी चाहिए यहाँ पे जो हमने इनरोल किए हैं, ताकि हम प्रैक्टिकल देख सकें। तो ये अपने पास डिवाइस आ गई, और इसको हमने जीसीपी से इनरोल किया था। एवरीथिंग इज ओके। और इस डिवाइस के ऊपर अगर आप कोई भी 365 की सर्विसेज इस्तेमाल करोगे तो आसानी से यूज कर पाओगे, टीम्स वगैरह आप आसानी से यूज कर पाओगे, सब कुछ अभी यूज कर पाओगे। लेकिन हमने इस पे कंप्लायंस पॉलिसी अभी नहीं लगाई, ठीक है? डू वन थिंग, लेट मी ओपन। अभी तो ये सारी सर्विसेज आपको अलाउ कर देगा यूज करने के लिए। तो आई एम गोइंग टू लॉग इन office.com। टीम्स वगैरह चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं कि क्या काम कर रहा है या नहीं, उसी यूजर से जिस यूजर से हमने यूज किया है, जीसीपी वाले यूजर से। teachmecloud.net। ठीक है, अभी तो आई डोंट थिंक कि कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए इसमें। वी आर एबल टू लॉग इन, और इसको आउटलुक चेक कर लेते हैं, आउटलुक यूज कर पा रहे हैं, वर्ड चेक कर लेते हैं यूज कर पा रहे हैं या नहीं। मीन्स जो भी सर्विसेज हैं हमारे पास, वो हम एक बार वेरीफाई कर लेते हैं, क्योंकि हम इस पे कंडीशनल एक्सेस लगाने वाले हैं, क्योंकि हम इस पे कंप्लायंस पॉलिसी लगाने वाले हैं। तो लेट मी चेक कि क्या होता है। वर्ड वगैरह हम इस पे इस्तेमाल कर पा रहे हैं, चलो कोई पंगा नहीं है अभी। ठीक है, ये वही वर्चुअल मशीन है जिसको हमने इंट्यून से इनरोल कर रखा है। अब आ जाओ बैक आप, और इस पर्टिकुलर पैनल के ऊपर जा करके आपको पहले कंप्लायंस क्रिएट करना है, फिर कंडीशनल एक्सेस पॉलिसी लगानी है। तो कंप्लायंस पॉलिसी के लिए आप अपने विंडोज पे जाइए, या डायरेक्टली यहाँ पे जा सकते हैं। कंप्लायंस पॉलिसी पे आ जाएंगे, क्रिएट पॉलिसी पे जाएंगे आप, सेलेक्ट द टाइप ऑफ प्लेटफॉर्म दैट वी हैव। तो हम विंडोज 10 या लेटर पे जाएंगे, क्रिएट पे जाएंगे, टाइप द नेम ऑफ पॉलिसी, डेमो पॉलिसी। नेक्स्ट, दिस इज द पैनल। मल्टीपल पॉलिसीज आर अवेलेबल, डिपेंड करता है कि आप किस तरीके की पॉलिसी लगाना चाहते हैं। तो हम बहुत ही छोटी छोटी पॉलिसीज इस पे लगाते हैं जो हम आसानी से समझ पाए। पहला, हम पासवर्ड सिक्योरिटी सेटिंग्स में जाकर के, पासवर्ड रिक्वायर्ड है, जिस भी डिवाइस से आप यूज करेंगे वो पासवर्ड रिक्वायर्ड होना चाहिए। लेंथ में हम इसमें दे रहे हैं 14 कैरेक्टर जानबूझ करके, और इसको हम दे रहे हैं द मैक्सिमम मिनट ऑफ एक्टिविटी बिफोर द पासवर्ड इज रिक्वायर्ड, 5 मिनट का दे देते हैं। एक्सपायरेशन 90 डेज का दे देते हैं, और प्रीवियस पासवर्ड 3 आप नहीं यूज कर पाएंगे अगर आप रीसेट करते हैं पासवर्ड को। इज दैट क्लियर गाइस? ये समझ में आ रही है? जो ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, ये कंप्लायंस हम लगा रहे हैं इसके लिए। यस यस। चलो, ये हो गया। और दूसरा, हम इस पे ना एक और रिक्वायरमेंट फुलफिल कर देते हैं, विच इज रिलेटेड टू द एंटीवायरस। फिर ये रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं कर पाएंगे हम लोग। एंटी मालवेयर डिफाइंडर, एंटी मालवेयर बिट लॉकर की पॉलिसी बताइए कैसे लगाते हैं। बिट लॉकर की पॉलिसी, चलो एक तो ये पॉलिसी हो गई, यहाँ पे पासवर्ड वाला काम हो गया। डिवाइस में जाएंगे तो नॉट इन डिवाइस विच इज अवेलेबल, कस्टम कंप्लायंस। बिट लॉकर की पॉलिसी भी यहीं पे होगी, दिस इज द बिट लॉकर। डिवाइस हेल्थ में जाएंगे तो अब बिट लॉकर को एक्टिवेट कर दीजिए। सिक्योर बूटिंग, सिक्योर बूट, व्हाट इज सिक्योर बूट? सिक्योर लाइक सर ये तो शायद ऑप्शन होता है उसका बायोस का। हाँ जी बिल्कुल,
सिक्योर बूट का मतलब अगर आपका लेगेसी बायोस है तो ये काम नहीं करेगा, अगर आपका यूईएफआई बायोस है तब आपका काम करेगा। तो आई एम नॉट गोइंग टू प्रोसीड विद सिक्योर बूटिंग। ये 3-4 पॉलिसी हमने लगा दी कंप्लायंस के लिए, ठीक है। ओके। चलो इसको करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट, अब आप यहाँ पे असाइनमेंट कर दीजिए। तो असाइनमेंट के लिए क्या करेंगे, 3 ऑप्शन है अगेन। यूजर पे जाओगे, डिवाइसेस पे जाओगे, या फिर ग्रुप पे जाओगे। आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो अभी हम अपने ग्रुप पे जाएंगे, जो हमने ग्रुप बनाया है, क्योंकि उसी ग्रुप के अंदर हमारा यूजर है O365 इंट्यून का ग्रुप, इसी के अंदर हमने यूजर असाइन कर रखा है जीसीपी का, और उसी जीसीपी से हमने लॉग इन करा रखा है, राइट। तो चलिए नेक्स्ट करिए और क्रिएट करिए। टाइम लगेगा इसमें, 5 मिनट का टाइम लगेगा आपकी कंप्लायंस पॉलिसी को रिपोर्ट करने में, क्योंकि डिवाइस को चेक करेगा, आइडेंटिफाई करेगा, उसके बाद आपको ये रिपोर्ट देगा कि आपकी डिवाइस कितनी कंप्लायंस है या कितनी नॉन कंप्लायंस है। गॉट इट व्हाट आई एम सेइंग। तो थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं, और फिर जैसे ही हमारी पॉलिसी यहाँ पे आ जाती है, जैसे हमारे कंप्लायंस दिखना स्टार्ट हो जाता है, वी कैन प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट। इज दैट ओके? ओके। 10 मिनट का ब्रेक ले लें, एक ब्रेक ले लेते हैं छोटा सा, उसके बाद फिर से कनेक्ट करते हैं इसी में, और कंप्लायंस पॉलिसी लगने के बाद कंडीशनल एक्सेस इस पे लगाते हैं। इज दैट ओके गाइस? यस ओके। ओके। 10 मिनट में फिर से कंटिन्यू करते हैं, तब तक ये पॉलिसी हमारी रिफ्रेश हो जाएगी। ओके। This conference will now be recorded. ठीक है, जो हमने कंप्लायंस पॉलिसी के अंदर बहुत सारे स्टेप्स फॉलो किए थे, वो कंप्लायंस पॉलिसी आपके एप्लीकेबल हो गई है। एंड वी जस्ट नीड टू चेक द रिपोर्ट कि आपकी डिवाइस ये फुल्ली कंप्लायंट है या नहीं। सो इफ वी चेक इट, तो आई थिंक जो हमारी डिवाइस है वो पूरी तरीके से कंप्लायंट है। लेट मी वेरीफाई। डेमो कंप्लायंस पे जाते हैं पहले हम अपने डिवाइस पे, एंड लेट मी चेक कि क्या स्टेटस है इसका। द पॉलिसी दैट वी कॉन्फ़िगर इट्स फुल्ली कंप्लायंट। ये मतलब कोई भी एरर या कोई भी इश्यूज अभी तो नहीं आया। लेट मी चेक, वैसे एरर आना चाहिए इसमें। ओके, सॉरी, आवर कंप्लायंस पॉलिसी इज एप्लीकेबल। आप अगर हम इसको देखें तो हमारे जो कंप्लायंस है ना, वो पॉलिसी आपकी अप्लाई हो चुकी है। एंड इसके पहले जो इस मशीन का हमने पासवर्ड रखा था ना, cloud@123, सो इट मीन्स दैट अगर हम इस पूरे कैरेक्टर को मिलाएं, cloud@123, तो ये टोटल 4 5 3 8, तो जो नंबर ऑफ डिजिट हो रहा है वो कितने हो रहे हैं? 8 डिजिट हो रहा है। एज पर द रिक्वायरमेंट कितने की जरूरत है? 14 कैरेक्टर मिनिमम हमने डिसाइड किया था, रिमेंबर, इन द पासवर्ड पॉलिसी। हमने यस जो यस। कंप्लायंस पॉलिसी क्रिएट की थी उसमें कॉम्प्लेक्स पासवर्ड रख रखा था, प्लस नंबर ऑफ डिजिट की बात करें तो 14 कैरेक्टर रख रखा था, और हमारा जो करंट पासवर्ड है वो है cloud@123 विच इज 8 कैरेक्टर।
दैट्स वाई अब यहाँ पे हम इसको जब लॉग इन करने की कोशिश कर रहे हैं थ्रू द लोकल एडमिनिस्ट्रेटर आस्किंग टू रीसेट द पासवर्ड, और आप यहाँ पे उसी रूल्स को फॉलो करेंगे जो कंप्लायंस पॉलिसी में आपने कॉन्फ़िगर किया है। मतलब आप जो नया पासवर्ड देंगे, पहली चीज पुराने पासवर्ड से मैच नहीं होना चाहिए। दूसरा, आप मिनिमम 14 कैरेक्टर और कॉम्प्लेक्स रखेंगे। इज दैट ओके? ये प्रॉम्प्ट क्यों आया? क्योंकि जो पॉलिसी है ना कंप्लायंस की, वो आपके इस डिवाइस के लिए एप्लीकेबल हो चुकी है, इस यूजर के लिए एप्लीकेबल हो गई है। इज दैट फाइन? या फाइन। आई एम गोइंग टू रीसेट द पासवर्ड, और इसमें कुछ सर मुझे थोड़ा सा डाउट था, ये जो पॉलिसी बताओ। ठीक है कि यहाँ पे अप्लाई हो गई है और हम लॉग इन नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन इंटरनेट पोर्टल पे तो वो दिख नहीं रहा है ना, कि वो कंप्लाइंट दिखना चाहिए ना, इन कंप्लाइंट समथिंग। थोड़ा सा टाइम लगता है जब भी हम क्लाउड पे सर्विसेज यूज करते हैं ना, तो इमीडिएटली किसी भी रिजल्ट को हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके लिए क्या करना होता है हमें, अगर हमें इमीडिएटली रिस्पॉन्ड चाहिए तो आप कुछ नहीं करना है आपको। जब भी इन फ्यूचर आप कंपनी के लिए सर्विसेज हैंडल करो माइक्रोसॉफ्ट 365 या इंट्यून की ना, तो डे वन जिस दिन आप अकाउंट बनाओगे, आपको कुछ नहीं करना, आप सीधे से आ जाओगे, वेट मेन पेज पे आ जाओगे, यहाँ पे नहीं, रिपोर्ट यहाँ पे आओगे सपोर्ट पे, ठीक है, हेल्प एंड सपोर्ट पे आओगे, और यहाँ पे आप अपना इशू लिख दोगे, unable to synchronize services to on-prem or enroll device, ठीक है, जो भी है विंडोज की है, या अनेबल टू इनरोल, नहीं अनेबल टू इनरोल तो है नहीं, अनेबल टू सिंक्रोनाइज सर्विसेज टू एनरोल्ड डिवाइसेस। आप ये कुछ ऐसे करके ना एक टिकट जनरेट कर दो फटाफट से। आप इस पे कॉलिंग का ऑप्शन रखना ताकि आपके पास वो कॉल आए डायरेक्टली। सो आई एम गोइंग टू अप्लाई इट फॉर विंडोज मशीन, सेटअप एट एनरोलमेंट, और कॉन्टेक्ट टू सपोर्ट पे जाओ, और यहाँ पे फोन कर लेना। नंबर जो है वो नंबर सेलेक्ट कर लो, और आप यहाँ पे यस कर दो, और इसको कॉन्टेक्ट मी पे लिस्ट कर दो। ठीक है, बंदा कॉल करेगा, मे बी 5 से 7 मिनट के अंदर, या मे बी 10 मिनट के अंदर आपके पास कॉल आएगी। आप उसको गाइड करो, वो आपके पे सिस्टम का हो सकता है एक्सेस मांगे आरडीपी पे, और 5 मिनट के अंदर आपके अंदर कुछ ना कुछ वो पैकेज इंस्टॉल करते हैं माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से। उसके बाद से फिर आपको रिजल्ट दिखना स्टार्ट हो जाएगा कि यार ये तो इमीडिएटली सिंक्रोनाइज हो रहा है। इसका इस्तेमाल ज्यादातर करते हैं जब आप एडी सिंक्रोनाइज करते हैं। तो प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में ये ध्यान रखना, अगर आपकी चीजें टाइम ले रही हैं, ठीक है ना, तो आप एक टिकट रेस कर दो, फटाफट से टिकट जनरेट कर दो, बंदा तुरंत आपको जो है ना आपकी हेल्प कर देगा। अभी मेरे पास मे बी कि 10 मिनट के अंदर कॉल आ जाएगी, ओके। ठीक है। तो ये आपका उस अकाउंट पे करना है जिस अकाउंट का आपने इस्तेमाल करके चीजों को मैनेज कर रहे हो। तो ये थोड़ा सा इम्प्लीमेंट करने में आपको आसानी हो जाएगी चीजें देखने में। ठीक है, अभी नॉन कंप्लायंस दिखा रहा है, अभी नॉन कंप्लायंस में ये डिवाइस आनी चाहिए। सर एक बार जरा मुझे पाथ दिखा देंगे क्या आप, कहाँ से आपने नॉन कंप्लाइंस ये कंप्लाइंस पॉलिसी सेट की? ओके, तो कंप्लायंस पॉलिसी के लिए आप जाओगे इंट्यून पोर्टल के ऊपर, ठीक है, डिवाइसेस पे जाओगे, अंडर द डिवाइसेस कंप्लायंस पॉलिसी में आओगे, क्रिएट कंप्लायंस पॉलिसी में जाओगे, यहाँ पे आप सेटअप करोगे विंडोज, और क्रिएट, यहाँ पे आप सिलेक्शन करोगे नेम का, टेस्ट पॉलिसी, नेक्स्ट, कंप्लायंस पॉलिसी में इनमें से कुछ भी सिलेक्ट कर लो, आपके ऊपर डिपेंड करता है, बिट लॉकर सेलेक्ट करना है, सिक्योरिटी सेलेक्ट करना है, वो आप है ना। फिर नेक्स्ट, तो यहाँ पे आप ग्रुप, ये जितने भी मेरे कंप्यूटर जो यहाँ पे टैग होंगे, मीन्स इंट्यून पे रजिस्टर्ड होंगे, उन सब पे ऑल हाँ, अप्लाई होगी, या हम मतलब हम इंडिविजुअल सेलेक्ट कर सकते हैं नहीं कंप्यूटर्स भाई, को? हम ग्रुप दे रहे हैं ना, तो ग्रुप के अंदर जितने यूजर होंगे सबके लिए कंप्लायंस पॉलिसी बनेगी। ओके ओके, हम जो यहाँ ठीक है। ग्रुप असाइन कर रहे हैं ना, तो वो जितने भी यूजर्स होंगे उन सबके लिए एप्लीकेबल हो जाएगी। तो इसके अंदर हमने ठीक है। एक यूजर रखा है, अगर 5 यूजर इन फ्यूचर ऐड करते हैं तो डेफिनेटली ये पॉलिसी हमारी 5 यूजर के लिए हो जाएगी। ओके। ठीक है,
ओके सर, थैंक यू। चलो वेलकम। यहाँ पे हम क्या करते हैं, पासवर्ड चेंज कर देते हैं अपने डिवाइस का। पहले पुराना पासवर्ड, उसके बाद फिर हम इसमें नया पासवर्ड देंगे, क्योंकि मैंडेटरी है, क्योंकि हमारी डिवाइस नॉन कंप्लायंस में है अभी। तो आई एम जस्ट गोइंग टू प्रोवाइड द पासवर्ड, और मिनिमम ये होना चाहिए 14 कैरेक्टर का। ठीक है, मे बी कि हो गया होगा। लेट मी ट्राई टू क्रिएट। पासवर्ड यू इंटर डिड नॉट मैच। चलो ठीक है। सर्वर at 1 2 3 4 5 6। ठीक है, लेट मी चेक। अब ये कुछ दूसरा एरर दे रहा है, यूजर नेम एंड पासवर्ड इज इनकरेक्ट, क्योंकि आप उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। तो पुराना पासवर्ड देन नया पासवर्ड, 14 कैरेक्टर का होना चाहिए। चलिए 14 कैरेक्टर का पासवर्ड हम दे देते हैं इसमें। एट प्रोसीड। चलिए सेट हो गया हमारा पासवर्ड, क्योंकि हमने इसके अकॉर्डिंग प्रोवाइड किया है। स्टिल वी आर एबल टू यूज द सर्विसेज। यहाँ पे हम ऑफिस 365 की सर्विसेज का इस्तेमाल कर पा रहे हैं, बिकॉज हमने इस पे कंडीशनल एक्सेस की पॉलिसी अभी नहीं अप्लाई की है। अगर हम इसमें office.com ओपन करते हैं ना, तो वी आर एबल टू यूज द सर्विसेज ऑफ माइक्रोसॉफ्ट 365। ठीक है, वी हैव टू वेट फॉर फ्यू मोर मिनट। वैसे इतनी देर में पॉलिसी आ जानी चाहिए। जीपी अपडेट चला के देख लें। जीपी अपडेट नहीं चलता भाई इस पे। अच्छा अच्छा। ग्रुप पॉलिसी नहीं है ये। ओके। एडी कैसे चलता है ना, क्या जीपी करें? अपडेट बस एडी के ऑन केस में, एक्टिव डायरेक्टरी। ऑन प्रोमाइसेस एडीडीएस के लिए होता है। यहाँ पे क्या कर सकते हो आप ना, पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए अपने डिवाइस पे जाकर के, जो इनरोल्ड डिवाइस है ना, जैसे ये है, इसको क्लिक करके ना आप यहाँ पे एक सिंक्रोनाइज का ऑप्शन आता है, ये कर सकते हो आप। बिट लॉकर नॉट अप्लीकेबल। नॉट अप्लीकेबल क्यों दिखा रहा है? ये ग्रीन रेड दिखाना चाहिए। बिट लॉकर नॉट अप्लीकेबल, बिट लॉकर होना चाहिए कॉन्सेप्ट। ठीक है, एक्चुअली ये अकॉर्डिंग टू दैट ये सभी हमारे कंप्लायंस डिवाइसेस हैं, मतलब कि आपका कंडीशनल एक्सेस काम नहीं करेगा। तो वी नीड टू मॉडिफाई आवर कंप्लायंस पॉलिसी। हम अपने डिवाइस के कंप्लायंस पॉलिसी को एक बार फिर से मॉडिफाई करने की जरूरत पड़ेगी, ताकि एनी हाउ हम जानबूझ करके इस पे कंप्लायंस पॉलिसी ला सकें, कंप्लायंट ला सकें, राइट? तभी हम कंडीशनल एक्सेस को कॉन्फ़िगर कर पाएंगे, है ना? तो ठीक है, कोई नहीं, अभी आप यहाँ तक देखते हैं। कल इसी में आगे हम लोग बढ़ेंगे रिलेटेड टू कंडीशनल एक्सेस। कल का एजेंडा रहेगा, 2 टॉपिक हम कवर करेंगे कल। एक कंडीशनल एक्सेस का कॉन्सेप्ट, और दूसरा जो है बल्क इनरोलमेंट बैकएंड से, विद द हेल्प ऑफ विंडोज कॉन्फ़िगरेशन डिजाइनर से, जो टूल्स है प्ले स्टोर पे, माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पे, उसके थ्रू। इज दैट ओके? ओके सर। सेम टाइम पे कनेक्ट करेंगे 1:30 पे, और 2-3 टॉपिक हम कल लोग कंप्लीट करेंगे। आई विल शेयर द रिकॉर्डिंग, आज की रिकॉर्डिंग मैं आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है? थैंक यू, थैंक्स लॉट। यू वेलकम। ओके एवरीवन, बाय बाय। ओके, थैंक यू, या बाय। बाय ऑल।